Welcome back. Now we are proceeding to one more chapter, that is judiciary. In the last class, we had completed the chapter which said about the legislatures. And in the very beginning, जब हम लोगों ने constitution at work को start किया था, so we had already done that there are either the powers are distributed in the horizontal manner, that is executives, legislators and judiciary, or it might be in the federal. So जो हमारा आज का है वो हमारे horizontal के अंदर the third power, that is the third organ of the government, which is called as judiciary, usko we would be doing. From this chapter you can definitely expect some long questions, because इस क्वेश्चन इसमें आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कैसा बना हुआ है, मतलब व्हाट इज द आइडिया एंड कैसे एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम हमारे यहाँ पर है. एंड देन यस, वन मतलब की इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि there have been certain instances when even judiciary जो है it has been questioned. So what were those problems that judiciary had to face? That is what the chapter is all about. To begin with, I would say कि yes, हमारा जो judicial system है, though it is said कि justice is quite delayed, but there have been many instances where Supreme Court or High Court have given a very remarkable judgment also. That makes कि दूसरा हमारा जो as per constitution, not as per constitution, political जो authorities होते हैं, they actually don't have any direct control on judiciary. यानी कि कोशिश की जाती है ऐसा. देखो बच्चा, जब हम इसका एक कंट्रास्ट कहते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज करप्शन. तो करप्शन के अंदर तो हर चीज आ जाती है. पीपल ट्राई टू ब्राइब, पीपल ट्राई टू ओवर पावर, लेकिन the constitution has, इसीलिए constitution has set up, and yes, we have many judges who have been very unbiased and given a very good judgment. हमारे यहाँ ऐसे बड़े सारे केसेस हुए हैं जहां पर the judiciary's importance have been established. तो सबसे पहले why we need an independent judiciary. As I said, independent का मतलब हो जाता बच्चा जब आप दूसरे को देखते हो जहां पॉलिटिक्स के नीचे जुडिशरी है. लाइक इन मेनी ऑफ द कंट्रीज इट वाज देयर. इन फ्रेंच रेवोल्यूशन इट वाज देयर. फ्रेंच में भी उन्होंने जब व्हेन दे हैड मेड द मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो उसके अंदर जुडिशरी को अलग किया था. ऐसा क्यों? द रीजन इज कि इफ जुडिशरी इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, then what will happen is कि जो legislators and they would be taking it for themselves. Like in the case of Pakistan, Dr. Pervez Musharraf had amended the constitutions and he had given himself the power. In case of Pinochet, he had given him extreme power. तो ऐसे जो है आप मतलब कि and there would be nobody जिसके पास आप जाकर जो है इस injustice को बोल सकते हो. तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट जुडिशरी का सबसे इम्पोर्टेंट यही एक मतलब कि द मेन ऑब्जेक्टिव ये है. तो जुडिशरी सेटल्स ऑल द डिस्प्यूट. द डिस्प्यूट्स आर अमंग पीपल between two organs of government. It may be among different organs of government, between state and center government, so it might be there. It safeguards the, sorry, all are subjected to same law. Judiciary practices the right of equality. It is the one which has been the, you can say, safeguard of not only rights, even of the constitution. It ensures democracy is protected and no dictatorship enters. यानी कि जब भी उसे लगता है the executives or the legislators are overpowering, then try to they try to control their themselves.
कई बार ऐसे हमारे पास ऐसे बड़े सारे मतलब कि इन द जुडिशियल वो जैसे जुडिशियल रिव्यू PIN, these are some of the instruments. This idea of rule of law implies that all the individuals, rich, poor, forward, backward, everyone are subjected to the same law. मतलब लॉ का जो प्रोसीजर होता है वो सेम होता है. It's not that कि the person is belonging to a higher bracket of tax तो उसके लिए कुछ और हमारे लिए कुछ और, ऐसा नहीं है. Other organs should not interfere with judiciary. Judges should be able to perform duties without fear of favorism. It is accountable to the constitution, to the democratic tradition, and to the people of the country. So, कैसे करते हैं मतलब what is its constitution, उसका कैसे मतलब कि कैसे बनाया है, how it has मतलब कि हम कह सकते हैं कि yes हमारे यहाँ पर independent judiciary है, it is protected. What are the features, what are the provisions? तो जब भी कोई जजेस को अपॉइंट करना पड़ता है, yes the suggestion is taken but they don't appoint. They involve in the advice but they don't appoint. कोई लेजिस्लेचर अपॉइंट नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर कोई कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट नहीं करता है. देयर इज अ रूल कि एक सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब कि जज होगा उसको अपॉइंट करने के लिए दिस इज द प्रोसीजर. In India, there were two instances when the politicians tried to overrule, and definitely there were. उसके बाद जो है the charge sheet was there and the measures were taken. जो भी आपका प्रोसीजर है, सीनियोरिटी बेसिस जो भी आपका है, that is taken into account. But at the same time, the president definitely has a consultation with the council of ministers, with the cabinet ministers. To be judge, he must be expertise, a lawyer. Political opinion of person should not be the criteria. मतलब वो एक particular politician को या किसी political party को support कर रहा, वो criteria नहीं होना चाहिए. Judges have fixed tenure and security for same. मतलब they cannot be removed. They are removed with the procedure what we call as impeachment. और इस impeachment के लिए भी there is a proper procedure in the legislature. यानी कि जो impeachment motion है उससे पहले you need to first of all prove and then there is 2/3 मतलब आपकी जो majority होती है separately there should be voting, then only the judges are removed. उनकी जो salary है या फिर उनका जो भी financial packages हैं they do not come from the government fund. Then a judge should not be unfairly criticized. So the constitution makers believe that a difficult procedure, इसीलिए उन्होंने एक ऐसा procedure बनाया था जिससे आपका जब मन करा ठीक है भाई इस मतलब कि जज ने जो है इस political party को जो है support किया, चलो इसको हटा दो, ऐसा नहीं कर सकते. Conduct of judges is discussed only in case of removal of, मतलब उनके conduct पर आप कोई चर्चा नहीं करते. When you feel that the person is threatened to the law and order, the person has been framed या फिर मतलब कि convicted for some heinous crime, at that position इस चीज को मतलब कि legislature में लेकर आता. The constitution provides the salaries and allowances of the judges that are not subjected to approval of legislature. The actions and decisions of the judges are immune from personal criticism. It has the power to penalize those who are found guilty of contempt of court, and that can be for anyone. If you read the newspaper regularly, you will find such incidents. भाई वो कोर्ट में नहीं आया था तो उसके ऊपर पेनल्टी डाला गया. And it is equally for everyone. There are number of cases which goes on. This authority of the court is seen as an effective protection to the judges from unfair criticism. Now, how
the judges are appointed. और मैंने आपको बताया कि there was one controversy, वो भी इसमें आएगा. एक बार मतलब हमारे यहाँ हुआ था ऐसा, this law was broken and that became a very controversial मतलब की इश्यू था. नॉर्मली जो हमारा चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस, जो सीनियर मोस्ट होते हैं. लेकिन उससे पहले द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट प्रेसिडेंट, they have to have a consultation with the council of ministers. Means जो क्राइटेरिया है वो वही है. एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, इफ ही इज रिटायरिंग, तो जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट पोजीशन होगा उसी को अपॉइंट किया जाता है. लेकिन उसके अपॉइंटमेंट पर भी देयर इज अ प्रॉपर कंसल्टेशन. यानी कि जो रिटायर हो रहा है वो प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब लोग जो है मिलकर एक बार दे डिस्कस इट. They all have the matlab they would be discussing, they cannot matlab ki they cannot exactly tell. As far as the appointment of CJI is concerned, there has been matlab jahan par supreme, this convention was broken twice in 1973. This was a matlab ki one marker question when A.N. Ray was appointed as Chief Justice, superseding 3 senior justices. ये तब हुआ था and this was a very controversial issue. ये दोनों जब M.H. Big हुए थे and जो मतलब कि A.N. Ray हुए थे, दोनों के टाइम पर मतलब there were 3 people, he was the 4th, senior most के अंदर A.N. Ray was 4th. इनसे पहले 3 लोग थे, उनको छोड़कर he was appointed. The then consultation with the prime minister, and the same thing happened second time when M.H. Big was appointed, superseding H.R. Khanna. Very 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 important of this particular chapter. मतलब जब ये चैप्टर पढ़ाते ना, ये वाला तो हमेशा याद रहता है. मतलब ऐसे 2 बार ऐसा हुआ था हमारे देश में, when the law was what you say, the system was broken. The Chief Justice should recommend names of persons to be appointed in consultation with 4 senior most judges of the court. जो भी चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, वो बताते हैं. Thus, the Supreme Court has established the principle of collegiality in making recommendation for appointment. At the moment, therefore, in matters of appointment, the decision of group of senior judges of Supreme Court carries great weight. तो वैसे तो चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जो सीनियर मोस्ट होता है उसको किया जाता है. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास भी ये पावर है कि इट कैन ऑल्सो, उनका जो ग्रुप ऑफ जजेस है, दे कैन ऑल्सो टेक द पावर. एंड दिस वाज डन बिकॉज ऐसा लॉ ब्रेक हुआ था. बिकॉज क्या मतलब कि जो उस वक्त में रूलिंग गवर्नमेंट था, दे हैड ओवर पावर्ड द कन्वेंशन, जो हमारा एक रूटीन चल रहा था, एंड अ पर्सन हु वाज जूनियर मोस्ट, उसको जो है मतलब चीफ जस्टिस बनाया गया था, विच इज एक्चुअली अ वेरी रॉन्ग थिंग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. तो नाउ सुप्रीम कोर्ट कैरीज ग्रेटर वेट. ये उसी के बाद हुआ था. तो नाउ how do we remove the judges of Supreme Court or High Court? Normally it is not done, but हमारे यहाँ हुआ था ऐसा. There was one वो, मतलब कि even though it was not completed, but हुआ. Why? अगर हमें लगता है कि the judge is misbehaving या फिर constitutional मतलब कि उसके अंदर नहीं है, then what we call as motion of impeachment, they have to remove. और यहाँ पर जो executives हैं, the legislatures हैं, they have the role, they can मतलब कि vote. It should be noted that while making executives play a crucial role,
यानी कि आपके प्राइम मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, एंड द लेजिस्लेचर हैज द पावर ऑफ रिमूवल, क्योंकि दोनों जो हाउसेस हैं यानी कि सुप्रीम सॉरी राज्यसभा एंड लोकसभा, इनके मेंबर्स वोट करते हैं, दे वोट. Executives only play the role, they only consult, they can give the advice, लेकिन legislatures जो होते हैं they vote. So far only one case of removal came up for consideration. Though the motion got 2/3 majority, it did not have the support of majority of total strength of the house, so the judge was not removed. We have to have 2/3 majority equally and a total majority. In 1991, ये आपके बुक में साइड में एक बुक में वो उसमें बना हुआ है, the first ever motion to remove a Supreme Court justice was signed by 108 members of parliament. Justice Ramaswamy during the ये पंजाब हाई कोर्ट के थी, because he was accused of scam, मतलब fund का. In 1992, a year after the parliament had started the impeachment proceedings, a high-profile inquiry commission consisting of judges found guilty of willful, janbujhkar, and gross misuses of office and moral turpitude by using public fund for private purposes and reckless disregard of statutory rules. यानी कि जो लीगल रूल्स होते हैं, लॉ, स्टैट्यूटरी मतलब लॉ, उनको उन्होंने तोड़ा था और जो पब्लिक फंड है उसे उन्होंने अपने पर्सनल काम के लिए यूज किया था. दिस वाज अ फाइंडिंग्स, ये पता किया गया था कमीशन ने, जो कमीशन सेटअप हुई थी. And this was when he was the Chief Justice of Punjab and Haryana. Despite the strong indictment, Ramaswamy survived the parliament motion recommending removal, क्योंकि कंप्लीट वो नहीं मिला था मेजोरिटी, तो इसीलिए उनको रिमूव नहीं कर पाए. This is how sometimes even removal is very difficult. The motion recommending his removal got the required 2/3 majority among the members who were present and voting, but Congress party abstained from voting in the House, so it could not get the support of 1/2 of total strength of House. Normally it is 2/3 of both the houses. तो ये पीछे हट गए थे. Abstain मतलब they had taken back, जिसकी वजह से वो बच गए थे, or else he could have been removed. So in another word, removal और एक अपॉइंटमेंट जो होता है, इट इज अ प्रोसीजरल, इसको हम एक प्रोसीजरल सिस्टम बोलते हैं. अ प्रॉपर प्रोसीजर गोस. नाउ व्हाट इज द सिस्टम ऑफ आवर कोर्ट? हमारे जो कोर्ट है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. ये आपके 8th स्टैंडर्ड में भी था. India has an independent integrated judicial system. What is that? Independent matlab it doesn't come under legislature and executives. They only have an indirect role. And integrated matlab जो हमारे lower से लेकर जो upper court है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं. Like there are certain cases which will go to only district. There are certain cases which will go to only high court. There are certain cases, but there is certain provisions. अगर वहां पर नहीं होता है तो the next provision goes to the next court. Supreme Court has certain powers जहां पर वो existing जो मतलब कि cases है उसको अपने पास लेकर आ सकता है. तो there is an integration, मतलब आपस में मिला हुआ, they are एक ही तार से जुड़े हुए हैं. There are certain jurisdictions, which jurisdiction मतलब the area. There are certain jurisdictions जो डिस्ट्रिक्ट को जाते हैं, जो हाई कोर्ट को जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को जाते हैं. बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट कि डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ तो आप पीछे हट सकते हो, तो देन डेफिनेटली यू हैव द प्रोविजन टू गो टू द अपर कोर्ट. So that is called as integrated system. This means that unlike some other federal countries, India doesn't have separate state courts. हमारा जो सुप्रीम है वो टॉप है, एपेक्स कोर्ट बोलते हैं हम. उसके नीचे हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं.
So the lower courts यानी कि सबसे नीचे जो भी है, that has to function under the direct superintendence of higher courts. यानी कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपना अलग चल रहा है, हाई कोर्ट अपना अलग चल रहा है. नो, दे आर इंटीग्रेटेड, दे आर आंसरेबल. सुप्रीम कोर्ट इज एंड आंसरेबल. सुप्रीम कोर्ट जो है दैट इज डायरेक्टली देन टू द प्रेसिडेंट. हम लोगों ने प्रेसिडेंट के जो वो पढ़े थे, स्पेशल पावर्स पढ़े थे, डिस्क्रिशनरी पावर्स, उसके अंदर मैंने आपको बताया था देयर इज मतलब की पावर विच इज कॉल्ड एज पार्डन पावर. पार्डन मतलब माफ करना. हमारे यहाँ पर जब अब ये अजमल कसब जो था उसका केस गया था फॉर द पार्डन पावर. तो व्हेन ही वाज मतलब कि डेफिनेटली ही वाज नॉट अ छोटा मोटा कोई वो तो नहीं था, टेररिस्ट था. तो बट उसका केस गया था. सो इट डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट वेदर दे हैव टू. तो सुप्रीम कोर्ट के बाद इफ एनीथिंग कैन बी डन, इट इज ओनली प्रेसिडेंट, बट दैट इज द डिस्क्रिशनरी पावर. इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट को जो है we say that it is the apex court. It is one of the very powerful courts in the world. However, the functions within the limitation are imposed by constitution. The functions and responsibilities are defined by constitution. They have certain specific jurisdictions also. तो किस किस तरीके के जो jurisdictions हैं that can be done. अगेन ये रिट वाला आपके पहले वाले चैप्टर में भी था, इसमें भी है. तो यू कैन यूज बोथ ऑफ देम बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल. तो दोनों सेम है. फर्स्ट इज ओरिजिनल. ना ओरिजिनल मतलब जो केस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जाते हैं. ओरिजिनल मतलब those cases which can only be presented in Supreme Court. Not all the cases go to Supreme Court directly. It depends on डिफरेंट काइंड्स ऑफ केसेस. आपका सिविल है, कोई क्रिमिनल, कोई भी केस होता है तो उसके अंदर देयर आर सर्टेन मतलब कि किससे रिलेटेड है वो. इट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट, क्योंकि वो आपके उन मैटर्स में होते. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन अ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप किस कोर्ट में जाओगे? जस्ट इमेजिन, अगर स्टेट और सेंट्रल के बीच में है तो स्टेट अपने हाई कोर्ट पे थोड़ी जाएगा. इट इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि यूनियन तो आपका हायर हो गया ना, तो दे वुड नॉट कम टू हाई कोर्ट. तो जब ऐसे कोई झगड़ा होगा तो सुप्रीम कोर्ट इज द अंपायर. So there are certain cases, there are certain jurisdictions, there are certain areas जिसमें हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही अप्रोच करते हैं. Supreme Court establishes it as an umpire in all disputes regarding federal matters. Federal का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ पर जो जब आप लोग फेडरलिज्म पढ़ोगे, और ऑलरेडी यू हैव डन इन 10th ऑल्सो, देर आर सर्टन सब्जेक्ट जिस पर सिर्फ सेंटर बनाता है, यूनियन बनाता है, यूनियन लिस्ट. देर आर सम सब्जेक्ट जिस पर सिर्फ स्टेट्स बनाते हैं, जिनको हम स्टेट लिस्ट कहते हैं. देन देर आर सर्टन वेयर यू हैव कॉन्करेंट. अब कॉन्करेंट वाले में ऑफन देयर इज अ डिस्प्यूट. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो कॉन्करेंट लिस्ट है, अगर उसमें कोई भी डिस्प्यूट आता है तो जो यूनियन लिस्ट होता है उसको माना जाए. तो इन ऐसे एरियाज में कई बार देयर इज देन ट्रांसफर ऑफ पावर्स फ्रॉम यूनियन टू स्टेट, स्टेट टू लोकल गवर्नमेंट. दीज एरियाज in any federal country, legal disputes are bound to arise between union and states and among the states also. The power to resolve such cases is entrusted to Supreme Court. जैसे हमारे यहाँ पर जो water dispute है between Karnataka and Tamil Nadu, Kaveri water, Supreme Court. It settles dispute, interprets the powers of union and state government as laid in constitution. कई बार मतलब कि with the help of what they call as judiciary review, they have the power कि वो interpret कर सकते हैं यूनियन किस एरिया में पावर को ले रहा है. मे बी इट इज द स्टेट पावर और यूनियन ने उसको मिसयूज किया, तो इट कैन इंटरप्रेट एंड इट कैन गिव द जजमेंट. सेकेंड इज रिट. फर्स्ट वॉज ओरिजिनल, जो सिर्फ सुप्रीम में ही जाता है. रिट ये जो होता है ना, दिस इज दी रिट, मतलब कि वो आपको
It is given, issued. It is issued. But writs are issued by both Supreme Court and High Court. Any individual whose fundamental right has been violated can directly move the Supreme Court for remedy. And Supreme Court can give special orders in the form of writs. The high courts can also issue writs, but the persons whose rights are violated have choose. They have the choice कि वो किसको देना चाहे. So through such writs, the court can give orders to the executive to act or not to act in a particular way. अगर उनको लगता है कि उनके fundamental rights जो हमारे हैं, the six which we have, उनमें से किसी एक को भी नुकसान पहुंचा है, तो as an individual we have the right to directly approach Supreme Court. There is no need to go to district, high and Supreme Court. और वो आपकी चॉइस, आप सुप्रीम में जाना चाहते हो या हाई में जाना. अपील इट का मतलब होता अपील, अपील, रिक्वेस्ट. The Supreme Court is the highest court of appeal. अगर किसी भी इंसान को लगता है कि the decisions taken by High Court was not satisfactory, then it can be appealed in the Supreme Court. But the High Court also must certify that the case is fit for appeal. That is, it involves a serious matter of interpretation of law or constitution. अगर हाई कोर्ट कह देता है कि इट इज नॉट, मतलब कि इसमें कोई लॉ से रिलेटेड नहीं है, then सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट इट. इन एडिशन, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ बार बार, if the lower court has sentenced a person to death, then an appeal can be made to High Court or Supreme Court. Of course, the Supreme Court holds the power to decide whether to admit the appeal when appeal is not allowed by High Court. Appellate jurisdiction means Supreme Court will reconsider the case and legal issues. If the court thinks the law or the constitution has a different meaning from what lower court have understood, then it may change the rule and give a new interpretation. मतलब बहुत कम ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी मतलब कि हाई कोर्ट के पावर को ओवर रूल किया है, इन स्पेसिफिकली इन द क्रिमिनल केसेस. इन द मतलब कि इन द यूनियन केसेस इट हैज ओवर रूल. ओवर रूल का मतलब है कि वो जो कह रहे हैं वो गलत है और उसको मतलब कि वो नए तरीके से देखना चाहते हैं. You can do it. The high courts too have the appellate jurisdictions over the decisions given by courts below them. मतलब इसीलिए हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट. इसीलिए हम बोलते हैं, मूवीज में आपने देखा होगा डायलॉग होता है मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा. So this is how the courts can be approached. So that is called as appellate. ये इनके मीनिंग्स याद रखना बच्चा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. दिस कम्स एज अ प्रॉपर राइट, शॉर्ट नोट करके भी आ सकता है आपका, या फिर आपके पावर्स में भी आ सकता है. एडवाइजरी ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस से रिलेटेड देयर आर सर्टेन मैटर्स जहां पर मतलब कि सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू गिव इट्स एडवाइस. The President of India can refer any matter that is of public importance or that which involves interpretation of Constitution to Supreme Court for advice. मतलब यूनियन बजट, यूनियन मिनिस्टर्स, मतलब जो लेजिस्लेचर है उसने कोई लॉ बनाया, कोई बिल ड्राफ्ट किया, दैट बिल कैन बी, मतलब जब हम कहते हैं ना प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडर करता है, तो ही कैन टेक द हेल्प ऑफ द मतलब की कोर्ट्स टू कंसिडर दैट. जो भी प्रेसिडेंट होता, अगर उसको लग रहा है कि नहीं अप्रोप्रिएट है, तो दे ही और शी कैन टेक द हेल्प ऑफ द कोर्ट्स टू इंटरप्रेट दैट. सुप्रीम कोर्ट को वो बोल सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव एंड द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट सच एन. मतलब वो जरूरी नहीं है कि उन्होंने बोला है तो सुप्रीम कोर्ट देगी, और अगर उन्होंने दिया तो प्रेसिडेंट उसे माने या ना माने वो भी, बट they have the advisory power. As an advice they can do it. Reason क्या है, क्यों ऐसा है? See, even हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है, he is also one of the
what you call as qualified person. हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, दे आर क्वालिफाइड पर्सन, दे आर नॉट लाइक द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जिनकी क्वालिफिकेशंस हो या ना हो. प्रेसिडेंट इज ऑलवेज अ क्वालिफाइड पर्सन. आप किसी भी हमारे अभी तक के जितने मतलब की प्रेसिडेंट्स रहे सबका आप देखो, ऑल हैड अ वेरी हाई मतलब की प्रोफाइल. लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको एक है कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है लॉ. तो लीगल इसको देखना पड़ता है. लाइक इन वन ऑफ द केस, मतलब वो चैप्टर अब आपके 10th में डिलीटेड था, बट वी हैड इन आवर 10th स्टैंडर्ड अर्लियर. एक लॉ निकला था, मतलब एक देयर वाज वन व्हाट यू कॉल एज एक लॉ आया था जिसके अकॉर्डिंग, मतलब दैट वाज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. बट व्हाट दे डिड इज, उन्होंने जो है लॉ ये बनाया that anyone who is having more than 2 children should not contest for vote. And सेम ऐसा ही मतलब कि हरियाणा या पता नहीं कहाँ हुआ था, वहां हुआ था कि the people who are at least 10th pass should contest. दोनों में promotion was of development. मतलब अगर हम लोग देखें तो the manner was on development. लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी डेमोक्रेसी क्या कहती है, no one can be stopped on the basis of any ground for contesting the elections or for universal adult franchise. So that was completely against, वो एक against हो गया था. तो ऐसे में जो मतलब कि आपके जब ऐसा लॉ बनाया तो डेफिनेटली it had to be referred whether it should be, and constitutionally it was wrong. वो नहीं, उसे हटाया गया. So that is how मतलब कि they give the advice. It allows the government to seek legal opinion on a matter of importance before taking it. Maybe the government wants to, the government wants to. This may prevent unnecessary litigations later. आपको मैंने बताया PIL, PIL. What is PIL? It is public interest litigation. यानी कि any law which has been made which violates the rights of the common people, उस वक्त में एक common people, जो एक common person है, he or she can put the PIL. तो ऐसा कोई भी लॉ बनाने से पहले द गवर्नमेंट में सीक, मतलब वो गवर्नमेंट पे कोई जबरदस्ती नहीं है, एंड मे बी द सुप्रीम, मतलब कि द गवर्नमेंट कैन इवन मेक द सुटेबल चेंज अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है तो. Unified nature of our judiciary and the power of Supreme Court, decisions made by Supreme Court are binding on all other courts within the territory of India. Orders passed by it are enforceable throughout the length and breadth of the country. The Supreme Court itself is not bound by its decision and can anytime review it. मतलब ऐसा नहीं है कि वो उससे बाउंड है, अगर उसको लगता है कि दोबारा एक बार रिव्यू करना वो कर सकता है. And if there is a case of contempt of Supreme Court, then Supreme Court itself decides such a case. मतलब अगर उनको लगता है कि what they have made is wrong, तो उनको ही उसे सोचना पड़ता है उसे कैसे ठीक करना. No external जो अथॉरिटी है वो उनको बताएगा. मतलब एक सुप्रीम मतलब की चीफ जस्टिस जो है वो बना के गया, मतलब इट्स नॉट लाइक मेड बाय वन. इट्स नॉट जैसे मूवीज में दिखाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि कोई खड़ा हुआ है और वो ऐसे ऐसे करके बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है. These are all done in a very, बहुत ही मतलब कि separate system होता है. First of all, any case, everything is in a written manner, everything is presented before the court. जो आपके jury members होते हैं, they take, in case अगर उनको लगता है कि they need to speak to the convict, they need to speak to the victim, वो सबको बुलाते हैं. There might be a separate procedure, ये पूरा एक procedure से चलता है. तो इसीलिए जो मतलब कि हमारा कोर्ट है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, एंड इट इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट. मतलब उसका एक रोल अपने आप में ही बहुत बड़ा है. इट्स नॉट सो इजी एज इट इज शोन इन अ मूवी.
नाउ what has been the judicial activism, अभी आपको मैं ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ कि कई पहले तो क्या होता था, एक मतलब जो मुझे वो बना है पहले, some of the मतलब कि areas were not under Subman and there were certain rules also, like हम लोग जो है वर्बल या फिर कोई क्लिप्स वीडियो के जो होते हैं उनको पहले नहीं लेते थे, लेकिन अब जो है टेकिंग दी विद दी ऑथेंटिसिटी, मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी को पहले समझते हैं. इफ वी फील दैट यस इट इज ऑथेंटिक, देन इवन वीडियो क्लिपिंग्स आर आल्सो नाउ प्रेजेंटेड इन दी. तो मतलब ये आपका एक जुडिशियल एक्टिविज्म है. एक्टिविज्म का मतलब होता है कि ओवर द पीरियड हाउ दे हैव बीन एक्टिव. And nowadays even the court जो है they are even taking up the cases which comes in the newspaper में आता है, वो उस क्लिपिंग को लेते हैं, उसको भी वो लोग जो है आजकल रिव्यू करने के लिए खुद ही करते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि हम जाकर उन्हें बोले. इवन सुप्रीम कोर्ट नाउडेज इज टेकिंग द केसेस इटसेल्फ आल्सो, वो खुद भी लेती है आजकल. मतलब उनको लगता है कि देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ सर्टेन, मतलब कि कुछ ऐसा लग रहा है कि वैसा हो रहा है, तो दे टेक अप दैट मैटर. Democratize judicial system by giving individual or group access to courts. मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे हमारे यहाँ पर इट्स नॉट नेसेसरी हम PIL डालते, तो PIL इज नॉट वन, इट कैन बी ऑन अ बेसिस ऑफ ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ पीपल कैन डू इट. देन सुप्रीम कोर्ट वाज द वन जिसने ये रूल बीच में लेकर आए थे, आई थिंक इन 1980s में, that because the cases of people with less literacy and the people money and जो मतलब कि मसल पावर है वो बहुत ज्यादा हो रहा था, इसीलिए देयर वर मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ बनाया था that everyone who is contesting for the elections must file an affidavit. उनको अपना इनकम, अपना एसेट्स, अपने लायबिलिटीज, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड बी फाइल्ड एज एन एफिडेविट. एफिडेविट इज अ डिक्लेरेशन, आपका एक डिक्लेरेशन है. यानी कि अगर इंसान ने उस डिक्लेरेशन में कुछ भी गलत किया है, तो अगर बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो दैट पर्सन माइट बी sued. So this provision has been given. PIL, and I have already told you, PIL social action litigations होते हैं when anything which is against the society, when anything against the public, मतलब कि के against कोई law बनाया जाता है, तो then the people can directly approach the court. हमारे यहाँ पर अगर if you talk to some lawyers, they tell एक एक दिन में 700 750 PILs होते हैं, because legislature का काम होता है to legislate the law. But as a human, as a citizen, we also have the power, we also have the rights to see कि वो जो बनाया है वो हम पर कितना असर हो रहा है. In when in Delhi, मतलब it was 5 years back, I'm telling you, जब बड़ा वो एक कॉमन सिस्टम था ऑड एंड इवन का. तो जो ऑड एंड इवन का सिस्टम तब बना था, तो उस वक्त में एक दिन में देयर वर मोर देन 700 केसेस जिसमें PIL डाला गया. व्हाई? बिकॉज अगर हम देखते हैं, बट इफ वी आर नॉट हैविंग अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देन व्हाट टू डू? डेफिनेटली इफ यू डोंट हैव अ प्रॉपर सिस्टम फ्रॉम, मतलब कि आपको अपने घर से दूर जाने के लिए, एंड देन यू से कि एक दिन में ऑड चलेगा, एक दिन में इवन चलेगा. भाई जिसके पास ऑड गाड़ी है वो क्या करेगा, कहाँ से इवन लेकर आएगा जिस दिन इवन. And if there is no public transportation available at the end, तो वो क्या करे? Every person doesn't buy a car for personal, मतलब कि luxury. There are people who buy because they want to travel. They don't have any other commutation के लिए उनके पास कोई means नहीं है. मेट्रो तो आज है, अभी तो दिल्ली में फिर भी मेट्रोज है, उस वक्त में तो इतने मेट्रोज भी नहीं थे. एंड टू गो टू मेट्रो ऑल्सो यू नीड समथिंग. देन एंड देन द सेकेंड थिंग व्हाट, मतलब कि जो PIL डाला था वो मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई हैड वन स्टूडेंट कॉल्ड रोहित, ही टोल्ड मी दिस. द सेकेंड वाज दैट कि some of the vehicles were exempted, then cabs were exempted. now अगर cabs अगर आपका मतलब कि उसमें चल सकता तो why not? This was not equality at that point.
मतलब कि द गवर्नमेंट हैड टू, उसके बाद द गवर्नमेंट, आपने देखा होगा अभी ऑर्डन इवन नहीं चल रहा है, तो दैट वाज द रीजन, क्योंकि पीआईएल डल सकता है. सिमिलरली एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द सोशल नॉर्म्स, a person can use it. जैसे मूवीज होती हैं, आपने देखा होगा, देर आर सर्टन मूवीज, उसके अंदर जो है, मतलब अभी जो ये वाला हुआ था, ओएमजी पे डाला था, that was there under SAL only it was done. It was said that he should not be portrayed as Lord Shiva, but it should be messenger. तो ऐसे हम, मतलब if it hurts our sentiments, or if it is hurting the public's rights, we have, an individual can approach the courts only if he or she has been personally aggrieved. That is, whose rights have been violated, who is involved in a dispute, could move the court of law. In 1979, the court said to Trent when it decided to hear a case where the case was filed not by the aggrieved but on the behalf of others. मतलब नॉर्मली अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो ही मुझे कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर जुडिशियल मतलब कि इतना एक्टिव है कि एक बार ऐसा भी हुआ था कि जिस इंसान के साथ हुआ था ही डिड नॉट, लेकिन उसके बिहाफ पर किसी और ने किया था. ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज इट वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, एंड दैट इज हाउ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस केम अप. Supreme Court also takes up the cases about the rights of prisoners. Ganga Jal movie देखिएगा. This opened the gates of large number of cases where public spirited citizens, voluntary organizations sought judicial intervention. उसके लिए हमारे यहाँ जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इट वर्क्स. जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जब वो चैप्टर आएगा आपके तब आप पढ़ोगे, उसके अंदर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आपके रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही होते हैं. उसमें जो आपके कमीशन में जो मेंबर्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एंड हाई कोर्ट के रिटायर्ड मेंबर्स होते हैं. एंड दे विजिट द एरियाज, आपके जो प्रिजन्स हैं या फिर आपके जो मतलब कि जहां पर इवन रिमांड ऑफिस है वहां पर वो विजिट करते हैं. they speak to the prisoners, they try to find out if they are having any, और हो भी सकता है कि किसी को मतलब कि फ्रेम किया हो, and then these cases are brought in front of the courts, and then court जो है वो एक, this is also one of the very active participation. मतलब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ केसेस जो उनके पास आए हैं सिर्फ उनको ठीक नहीं करता है, कोर्ट सिर्फ उन्हीं चीजों को नहीं करता जो उनके पास आए हैं, इवन दे इंटरवेन through different organizations. As I said, हमारे यहाँ न्यू नेशनल जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, it has been very active for this, and there have been many cases जहां पर they have intervened and जो कोर्ट है उसने मतलब कि उसमें अपना दिया है. So in this manner, PIL has also become an important vehicle of judicial activism. Then, as I said, judiciary considered case based on newspaper and postal complaints. पहले ऐसा नहीं होता था, बट आजकल अगर मतलब कि न्यूज़पेपर के क्लिप मतलब कि उसमें आते हैं ना, they are even taking up those cases. This was not in the earlier period. Now the courts are acting, मतलब कि now they are modernizing themselves. In fact, पहले तो ये होता था कि कोर्ट्स की अपनी छुट्टियां होती थी तो दे वुड नॉट वर्क, बट नाउ देयर आर सर्टेन, मतलब कि उन्होंने ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस कर रखे हैं जहां पर दे कैन वर्क इवन फ्रॉम देयर होम. देयर आर सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस कर रखे हैं जहां दे हैव टू वर्क. क्लीन एयर, क्योंकि हिंदुस्तान का जो एक बहुत फेमस है, द वेरी फेमस डायलॉग ऑफ सन्नी देओल, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख, तो इसीलिए उस चीजों को हटाने के लिए, बिकॉज हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ जजेस है, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग है वो कम है. मेनी पीपल हु टेक अप ह्यूमैनिटीज, दे कैन डेफिनेटली बिकम लॉयर्स, गुड लॉयर्स, बट नहीं जाते. क्लीन एयर, अनपोल्यूटेड वाटर, डिसेंट लिविंग, ये भी नाउ दीज आर ऑल्सो नाउ, क्योंकि यहाँ पर पहले दीज वर एनवायरमेंटलिस्ट को दिया जाता था, बट नाउ इट इज ऑल्सो कि एक तरफ से माना जाता है कि ये एक तरफ से हमारे लिए जो एक कंफर्टेबल राइट है टू लिव,
उसको वायलेट कर रहा है, वहां पर भी नाउ इट इज इंटरवेनिंग. There were some cases in Delhi, in the past, where the area was polluted. The NGO, National Green Tribunal, जो है NGT जो है, took the court case to the court, and the court had put the penalty. एक मतलब कि बहुत बड़ा एक वो हुआ था, an event हुआ था, and it was actually उनको बोला गया था कि that area should not be polluted since it's a river bed. But later on, that area was completely polluted. NGT took that to the Supreme Court, and Supreme Court gave its justice in the favor of. Post 1980, it also takes the rights of those sections who cannot easily approach in the courts. Judiciary allowed public spirited citizens, social organizations, and lawyers to file petitions on behalf of needy and deprived. जैसे the case of Bandhua Mukti Morcha. Bandhua is bonded labor. It's a bonded labor which is practiced in many of the areas. जहां पर लोगों से either they would be मतलब कि paid in meager या फिर बिल्कुल दिया नहीं जाता था. So this act was passed, even though it was passed in 1976. But later on it was taken. The unembellished requirement of Article 21 is that bonded laborers must be identified and released and suitably rehabilitated. ये ऐसे जो आपके केसेस है ना बच्चा, these are all important for your exam. Exams के लिए these will be very important. The act has been enacted pursuant to directive principle of state policy. Now, what is the difference between what you call as constitution and directive principles? Constitution guide करता है हमारे rights को, and directive principles of state policy guide करता है a reasonable living. तो जहां पर आपको लगता है कि they are not violation of rights, बट आपको लगता है कि द पर्सन इज उसके वेलफेयर के लिए इट इज वो नुकसान है, वहां पर द कोर्ट कैन इंटरवेन with the view to ensure human dignity to bonded labor, and any failure of action on the part of state would be violation of Article 21 of the Indian Constitution. तो ये आपका पास हुआ था 1984 में. काइंडली लर्न इट. ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब ये वाला पूरा ही इनफैक्ट आई हैव मतलब कि मेनी टाइम्स कि जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है व्हाट हैव बीन द एरियाज जहां पर दे हैव नाउ स्टार्टेड टेकिंग अप पार्टिसिपेशन. जो पहले हमने पढ़े थे, रिट्स है, एपिलेट है, ओरिजिनल है, ये सब तो आपके हैं ही है. सी दीज आर द वेयर व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन. ओरिजिनल, एपिलेट, रिट, एडवाइजरी. देन आपने मैंडेमस, को वारंटो, हेबस कार्पस, प्रोहिबिशन, सेरिटेरियो, ये तो हम पढ़ चुके हैं इन आवर अर्लियर, जहां पर द कोर्ट कैन आस्क एनी पर्टिकुलर केस टू बी ट्रांसफर्ड. द कोर्ट कैन आस्क टू रिकंसिडर. अरे ये तो हमारे पास है, लेकिन उसके साथ में द कोर्ट हैज नाउ बिकम मोर एक्टिव. पहले इट वाज ओनली कि उनके टेबल पे जो था वो उनको करते थे, बट नाउ दे themselves take up the actions. But on the other hand, there have been negative sides, like as I said, एक दिन में 700 TIS, एक दिन में. Just imagine. So how the court will work? Blurred the line of distinction between executive and legislature as well as judiciary. Means sometimes it looks मतलब कि कहीं ना कहीं वो जो 3 लाइनें खींची हुई है, एग्जीक्यूटिव का काम है टू एग्जीक्यूट यानी कि उस काम को लागू करना, लेजिस्लेचर का है टू लेजिस्लेट यानी कि लॉ बनाना, जुडिशरी का उसे प्रोटेक्ट करना, कहीं ना कहीं दैट लाइन इज नाउ बीइंग क्रॉस्ड. फॉर एग्जांपल, reducing air or sound population or investigating cases of corruption or bringing electoral reform is not duty of judiciary. This has to be done by the legislature. Therefore, some people feel judicial activism has made the balance
लेकिन कई लोगों को लगता है कि जुडिशरी शुड नॉट इंटरवेन. What is main judiciary power? Protector, interpreter of constitution. कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी लॉ को अमेंड करना जो है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस करना, दैट इज नॉट डन बाय द गवर्नमेंट, दो इट हैज बीन डन ट्वाइस, बट judiciary has the power to stop them. Then judicial review. आपने पहले भी सुना होगा मेरे मुंह से. जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कोई भी लॉ पास होता है तो द सुप्रीम कोर्ट कैन आस्क द गवर्नमेंट टू प्रेजेंट दैट बिफोर देम. इवन वो इम्प्लीमेंट भी हो जाए तो भी वो रिव्यू कर सकता है. इट ट्राइज टू prevent the subversion of constitution. Judiciary is entrusted with the task of protecting rights of citizens. The constitution provides two ways in which Supreme Court can remedy the violation. First, it can restore the fundamental rights by issuing writs of habeas corpus. Okay, I'm sorry. First, it can restore fundamental rights by issuing writs of habeas corpus mandamus. मतलब उनके पास है. Then Supreme Court can declare the concerned law as unconstitutional. जैसे मैंने कहा जुडिशियल रिव्यू को कैसे वो मतलब व्हेन दे सी जुडिशियल रिव्यू करते हैं तो एक उनके पास पावर है, हाई कोर्ट ने जो इश्यू किया है उसको वो रिस्टोर कर सकते हैं ओवर रूल करके. सेकेंडली, अगर उनको लगता है कि कोई लॉ जो है वो बन रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं. इन आवर कंट्री इट हैज बीन डन आल्सो. Judicial review means, already I have told you, to examine the constitutionality of any law. मतलब whether जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोविजन दे रहा है क्या ये सब चीजें उसके अंदर हैं. क्योंकि कई बार पॉलिटिकल पावर्स जो होते हैं दे ट्राई टू ओवर पावर by telling that this law is in welfare of the people, but whether it is protecting long term में. It can use the review power if a law is inconsistent with the distribution of powers laid by constitution. As I said, suppose central government makes a law जो उनको लगता है कि which according to some states concerns a subject from the state list, state वहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसको बोल सकता है. क्योंकि हमारे आप लोग फेडरलिज्म वाले चैप्टर में पढ़ोगे, इफ यू हैव ऑलरेडी रेड यू माइट हैव सीन देयर आर सेपरेट सब्जेक्ट्स वेयर आपके मतलब की यूनियन कैन मेक. In South Africa, it is a fundamental right of the citizen to bring the constitutional court cases of violation of other person's rights. Rights turn meaningful for poor and disadvantaged, जैसे prohibiting forced labor, trade in human flesh. दिल्ली का एक बड़ा ही कॉमन केस था निठारी केस. आप लोगों ने तो खैर सुना भी नहीं होगा. That was one of the worst case in I think human history. Then prohibiting employment of children in hazardous. These तीन जो हैं ये आपके आते हैं right against exploitation में. If you remember राइट्स वाला चैप्टर अगर याद हो तो उसके अंदर ये आपकी फोटो भी बनी हुई है. इट कम्स अंडर राइट्स अगेन एक्सप्लॉयटेशन, उसी के अंदर आता है. दैट इज आपका प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर और मतलब की ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसको हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, जिसके अंदर इंसान को खरीदा बेचा जा सकता है या फिर उसके साथ गलत हो सकता है, एक्सप्लॉइट किया जा सकता है. Now, as a judiciary, what is the power it gives to parliament? We have already done, but it can give the directions to executives. It can give the directions to CBI. जैसे हमारे यहाँ हवाला केस में नरसिम्हा राव जो है मतलब कि उनको भी किया गया था. He was the then prime minister. He was also the advisory
in Rajiv Gandhi ji's cabinet. He was also the prime minister. तो उस वक्त में जो मतलब कई लोगों को पेट्रोल पंप्स अलॉट हुए थे, तो when this case of corruption came in front, so that it was done. The Indian constitution is based on delicate principle, that is limited separation of powers and checks and balances. यही आपका है. तो द पार्लियामेंट इज सुप्रीम. ये हमेशा हमारी ये झगड़ा हमेशा रहा है. दिस इज व्हाट यू विल बी रीडिंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन कि भाई सुप्रीम कोर्ट को बना मतलब कि कोर्ट को बनाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को या पार्लियामेंट को बनाना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट हमारे यहाँ सुप्रीम है फॉर मेकिंग लॉ, एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है इन इम्प्लीमेंटिंग देम, whereas judiciary is supreme in settling the disputes. तो ऐसा होने के बावजूद there have been many times this conflict जहां पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में हमेशा ही झगड़ा रहा है. कई बार उन्होंने ओवर रूल किया तो कई बार इन्होंने ओवर रूल किया है. अभी आप पढ़ोगे एक दो केसेस हैं हमारे यहाँ, मतलब विच इज द लास्ट वन. पार्लियामेंट वांटेड टू पुट सम रेस्ट्रिक्शंस. ये हमारा आया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर, बिकॉज अर्लियर राइट टू प्रॉपर्टी वाज अंडर फंडामेंटल राइट्स. लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से क्या हुआ कि मेनी ऑफ द पीपल जो डिप्राइव सेक्शंस थे उनको प्रॉपर्टी का मतलब कि नहीं था, तो लैंड सीलिंग करनी थी. उस वक्त में आपका जो केशव नंदा भारती केस है जिसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लिया गया था, and it was decided कि right to property should be only a civil right, it's a constitutional right, not a fundamental right. मतलब what is the scope of right to private property? What is the scope of parliament to curtail, abridge or abrogate fundamental rights? What is the scope of parliament's power to amend the constitution? Can parliament make law that abridge fundamental rights? तो ये issues हमेशा ही रहे. ऐसे कई इश्यूज हमारे यहाँ पर आए हैं विच हैज बीन इन द कंट्रोवर्सी. पेपर के अंदर केशव नंदा भारती केस कई बार आया हुआ, irrespective of the schools, because that's one of the landmark case in our country. ये हमारा एक मतलब की था, ये केरला के थे केशव नंदा भारती, मतलब ये दिस वाज वो, क्योंकि देयर इज वन मतलब कि वो था, वो एक सीर है, तो दैट वाज अ केस कि उनके पास जो प्रॉपर्टी थी उसको लेकर. फ्रॉम इन 1973 केशव नंदा भारती केस आया, मतलब इसमें देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट. 79 में right to property was taken away. As I said, it was now not a fundamental right, but it was the right to only मतलब कि वो हमारा मतलब कि एक constitutional right है. It's not a fundamental right. फंडामेंटल हमारे वही है जो 6 हम पढ़ते हैं. Then 67 से 73 there have been many laws made जिसपे झगड़े रहे हैं, जैसे land reform laws, preventive detention. This was a very controversial जो हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन था, बिकॉज मेनी ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि हमने इनको इसलिए अरेस्ट किया है क्योंकि दे वर अ थ्रेट टू द लॉ एंड ऑर्डर. बट देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक पूरा क्लॉज है. देन रिजर्वेशन वाले में गवर्नमेंट को ही सपोर्ट मिला था व्हेन यूनियन वर्सेस इंदिरा साहनी केस हुआ था मंडल कमीशन का. तो उस वक्त में द गवर्नमेंट द कोर्ट हैड सपोर्टेड द यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि उस वक्त में द पीपल वर एजिटेटेड कि 27% अगर टोटल में, अभी तो 49% जा चुका है, लेकिन 27% अगर रिजर्व होता है तो कॉमन पीपल के लिए इट विल बिकम अ मतलब कि उनके लिए तो चांसेस कम हो जाएंगे. देयर वर रायट्स इन दिल्ली, ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, कई मतलब कि बसेस को जलाया गया था. दैट वाज वन ऑफ द वेरी इनफेमस केस. तो बट उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट हैड सपोर्टेड यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस इंदिरा साहनी हम बोलते हैं उसको. Then the law deciding compensation for acquisition of private properties, क्योंकि कई बार द गवर्नमेंट जैसे वो बना रही है प्रोजेक्ट्स बनाती है तो वहां पर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्विजिट करती है. लाइक मेट्रोज बने थे तो जो आसपास की मतलब की एरिया से उनको तोड़ा गया था तो उनको कहाँ लेकर जाओगे. डैम्स बनते हैं आपके, फ्लाईओवर्स बनते हैं, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है तो वहां पर
भाई इंसान तो कहता ना कि तो हमारी जमीन है, गवर्नमेंट कहती कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं. नाउ दैट्स अ कॉन्फ्लिक्ट. The case of Nanda Bharati case, it's a very famous case. You can also read it on the Google, you'll find it. The court ruled that there is a basic structure of the constitution and nobody can, even the parliament cannot violate it. Firstly, it said right to property was not a basic structure. मतलब इसको आप बेस नहीं बना सकते हो, इसको आप चेंज कर सकते हो. The court reserved to itself the right to decide whether various matters are part of basic structure of constitution. मतलब उन्होंने जो है उस वक्त को पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव को क्लियर एंड कट बोला कि किस एरियाज में दे वुड बी हैविंग देयर ओन से, वो दे वुड डिसाइड. Legislature has the power to govern itself and regulate the behavior of its members. The legislature can punish a person who the legislature holds guilty of breaching. Similarly, Supreme Court has its own power. Courts have their own conduct. Constitution provides that conduct of judges cannot be discussed in the parliament. वो तभी होता है जब आपको लगता है कि उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी या फिर कोई ऐसा सीरियस मतलब की रहा, जैसे वो अभी हमने ऊपर पढ़ा था जो जज मतलब कि जिसने मिस अप्रोप्रिएट किया था, उस वक्त में ही we don't discuss about these things. Parliament is only for the public welfare, not to discuss about anything else. और इस तरीके से the constitution has given complete protection to the judiciary. And right now ये फोटो मैंने इसलिए किया क्योंकि कई बार पेपर में आता है who is the current chief justice. So D.Y. Chandrachud is our present. Yeah, मतलब कि that is why I मतलब कि put this picture. Current prime minister तो सबको पता है, not to say, but current president, current मतलब कि लोकसभा स्पीकर, current CGI, इन सब की पेपर्स में क्वेश्चंस हमेशा आते हैं. Whether they are there in the in your book or not, it would come. Like हमारे जो मतलब कि इवन इन आवर बोर्ड्स आल्सो द क्वेश्चंस कैन बी पेपर बुक के अंदर है फर्स्ट आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आया था करंट कौन है. तो always remember the first and the current should always be learned by you, whether it is given in your book or not. You should always learn. जो भी करंट होता है और जो फर्स्ट होता है वो हमेशा करना चाहिए. मतलब करंट प्रेसिडेंट और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था ये हमेशा आपको पता होना चाहिए. दिस इज बिकॉज पॉलिटिकल साइंस डील्स विद दैट. इट मीन्स इवोल्यूशन ऑफ योर पॉलिटिक्स. तो उसका मतलब ये कि आपको पता होना चाहिए कि वहां से यहाँ तक कैसा रहा. तो दैट इज द चैप्टर जुडिशरी. यानी कि इन अ नटशेल आई कैन से दैट जुडिशरी का मतलब हो जाता है, आई हैव डिस्कस सो मेनी केसेस व्हिच आर नॉट गिवन इन द बुक्स बट we need to take up while we are teaching this chapter with you. कुछ आपके किसी और चैप्टर में दिखाई देंगे, कुछ आपके किसी और चैप्टर में होंगे, but when we are discussing we need to discuss at length all those. तो जुडिशरी इंडिया का जो है it is called as an integrated judiciary. That is because जो हमारे courts हैं they are interlinked with each other. Supreme Court is called as the apex or the Supreme Court, यानी कि highest court. There are certain areas जिसमें Supreme Court is having the मतलब कि has the direct powers also. कुछ आपके होते हैं जो root करते हैं from the lower court to upper court. Then जो appointments हैं they are very important. मतलब कि जो judges होते हैं उनके appointment को कैसे किया जाता है ये आपका एक बहुत important question है. Then for the past few years how मतलब की जो judiciary है it has promoted activism, वो आपका एक important question है. Then what are the problems that a judiciary face? Like in our case अगर हमारे country को ही ले लो आप, तो आपको भी पता है I have already given you the example also. तो there are मतलब कि इतने cases हैं कि अगर हमारी जुडिशरी 365 दिन भी काम करेगी ना तो भी आने वाले 10 साल जो केसेस है ना वो चलते नहीं है. मतलब देयर हैव बीन सर्टेन केसेस जिसमें जिस इंसान ने केस लगाया था वो तो मर गया, उसके पोते और पोतियों को जो है दे हैव गॉट द कॉम्पनसेशन. आई हैव वन मतलब कि हमारे घर का ही एक मतलब की है, देयर इज वन मैटर that मतलब that was basically between state and the people.
तो जो अभी हम पढ़ रहे थे ना प्राइवेट एक्विजिशन, ये उसी का था। द मतलब कि वहां पर जो है दैट पर्टिकुलर एरिया वाज फ्लडेड एंड द गवर्नमेंट एक्वायर्ड दैट लैंड, उन्होंने गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर कर लिया उस लैंड को। अब उसको एक्वायर किया तो भाई दो जोज हु आर यूजिंग दैट लैंड, आप उनको तो कुछ कॉम्पनसेशन दोगे ना। एंड दिस वाज इन 1970s, आई एम टॉकिंग अबाउट 1970s। नाउ मतलब कि अराउंड 80s के आसपास में उन्होंने कॉम्पनसेशन वगैरह को डिसाइड किया एंड दैट कॉम्पनसेशन वाज जस्ट लाइक अ नट, मतलब कि आपका पीनट के जैसा। इतना लैंड और उनको कुछ भी नहीं दिया एंड दीज पीपल हैड टू रीहैबिट, मतलब कि दे हैड टू माइग्रेट। इन फैक्ट इन लोगों को माइग्रेट करना पड़ा अलग अलग जगहों पर। जो एक टाइम पर सोना और चांदी में घूम रहे थे, दे हैड कम ऑन द रोड्स एंड अल्टीमेटली इन लोगों ने जो है मतलब कि कोर्ट में डाला एंड यू वोंट बिलीव इट वाज अराउंड 2000 और समथिंग दे गॉट द, मतलब जिन लोगों ने डाला था ना उनके 2 जनरेशन जा चुके थे एंड द थर्ड जनरेशन गॉट, और जो उनको कॉम्पनसेशन मिला था, व्हेन आई वाज टोल्ड आई वाज जस्ट लाफिंग, क्या फायदा, क्योंकि उसकी वैल्यू उन दिनों में 10,000 वाज समथिंग, 70s में 10,000 हैड द वैल्यू, बट इन 2000 इफ यू से कि आपको 10,000 रुपए मिल रहे तो उनका क्या करते, क्या जमीन आएगी? 10,000 की तो 1 इंच भी ना आएगी। और जो प्रॉब्लम्स उन लोगों ने सहा था वो, तो ये जो डिले इन डिसीजन है, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द जुडिशरी। इनफैक्ट देयर हैव बीन सर्टेन स्टेट जिन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स रखे हैं फॉर सर्टेन एरियाज, स्पेसिफिकली फॉर सर्टेन हीनस क्राइम उन लोगों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स रखे हैं। बट वी नीड, आपके पेपर का क्वेश्चन आ सकता है, जो आया भी था, मतलब कि वंस की आपके अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी द मतलब कि सम ऑफ द मेजर्स, तो यू कैन यूज दिस दैट फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नीड टू बी देयर। क्योंकि जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं होंगे, ऐसे आप सोचो 70 या 80 में डाला था उनको 2000 में मिला था एंड वो उस वक्त उन्होंने 10,000 डाला था, उनको बाद में 10,000 मिला था, उसका फायदा क्या हुआ? व्हाट वाज द रेट, व्हाट वाज द डिफरेंस इन करेंसी वे? भाई 1960s में कोई 700 रुपए कमाता था ना, तो दैट वाज कंसिडर्ड एज अ रिच पर्सन। आज आप एक बच्चे को भी नहीं बोल सकते। दैट इज वेयर द डिफरेंस इज। सो अगर किसी ने उस वक्त में 700 रुपए का कोट डाला था और अभी अगर उसको 700 रुपए मिल रहा है, तो व्हाट इज द फन? और इतने साल उसने जो लॉयर्स पे खर्च किया वो, तो डिले इन डिसीजन इज वन ऑफ द कॉमन फैक्टर्स ऑफ अवर जुडिशरी विच शुड बी टेकन। एंड अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, आया है इसीलिए बता रही हूँ, then you can say that more fast track courts should be there. There are states जहां है ये, but not for all the मतलब की appeals, so it should be there. So that's the entire chapter, judiciary.